Welcome, children. We are discussing the chapter How Do Organisms Reproduce? This is chapter 8 of class 10th science. In the previous sessions, we have already discussed about the asexual mode of reproduction in different organisms, and also we have discussed the sexual reproduction in plants. So, today in this session, we are going to discuss sexual reproduction in human being, under which we will be discussing male reproductive system. So here first of all I will give you the introduction to sexual reproduction in humans. So sexual reproduction is the process by which male and female produce a special cell called gametes, that is male and female gamete, with the help of specialized reproductive organs. So in case of human being, specialized reproductive organs are there. In case of male, it is testes, and in case of female, it is ovary, and they produce the male and female gamete respectively, and these gametes are fused during sexual reproduction. So these reproducing organs in human being are not functional at the time of birth. So the reproductive organs of humans becomes functional after they attain sexual maturity, and that stage of attaining sexual maturity is called adolescence stage, when the individual attains puberty. Okay, so adolescence is the stage when the pubertal changes takes place and humans attain sexual maturity. Okay, so the life has been divided into various stages, and the stages are the childhood stage, then adolescent, then adult, then old age stage. So what is childhood stage? Before adolescence, the body grows, height and weight increases, milk teeth are replaced by permanent teeth. So these are all changes that is included in the childhood stage. But what is adolescent stage? The childhood stage is followed by adolescent stage, which is from age 12 to 18. And during this stage, new set of changes takes place in our body to attain sexual maturity. So attaining sexual maturity is called puberty. And puberty is the time in life when a boy or girl becomes sexually mature. In male, the puberty time is 13 to 14 years, and in case of female, it is 10 to 12 years. So that means the female attains sexual maturity earlier than the male. So during this adolescent phase, or at attaining the puberty, various changes takes place in our body. So these changes may be physical, emotional, and behavioral. Okay, so you might be observing in you, because you are also in that age. Okay, so what are the common changes? Let us see. Feeling overly sensitive, looking for an identity, mood swing, feeling conscious about self, getting sexual feelings. जैसे फीलिंग ओवरली सेंसिटिव, कोई बात कोई कुछ बोल देता है तो आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हो, आपको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है. सो दैट इज़ फीलिंग ओवरली सेंसिटिव. लुकिंग फॉर एन आइडेंटिटी, आपको हमेशा लगता है कि मुझे हमेशा कोई आइडेंटिफाई करे, आई शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, मेरा खुद का एक आइडेंटिटी, क्लास में सब मुझे जाने, मुझे ही अटेंशन दे. ठीक है, तो ये है आपका दिस इज वन काइंड ऑफ चेंज दैट यू दैट काइंड वन काइंड ऑफ फीलिंग. ओके, देन मूड स्विंग, आपका हमेशा मूड स्विंग होता है. अभी खुश हो, कुछ देर के बाद आप दुखी हो जाओगे, कुछ देर के बाद आप
you will think something else. So always mood swing is there. Feeling conscious about self, खुद के बारे में बहुत कॉन्शियस हो जाता हूँ, मैंने कपड़ा कैसा पहना है, मेरा हेयर स्टाइल कैसा है, मुझे सब लोग कैसे देख रहे हैं, अब आई एम गेटिंग अटेंशन और नॉट, अगर कोई देख रहा है तो कैसे देख रहा है, मुझे क्यों देख रहा है, तो हम खुद के बारे में बहुत ही कॉन्शियस हो जाते हैं. देन गेटिंग सेक्सुअल फीलिंग्स. सो ड्यूरिंग दिस फेज, this is the one of the most important change that takes place, and this shows that you are attaining sexually maturity. So getting sexual feelings, that means you will always have feelings for the opposite sex. Okay, so that is called sexual feelings. अभी हम देखेंगे बच्चों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है. हमारे बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, अदर इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. सो व्हाट आर प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर? लेट मी फर्स्ट टेल यू. प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर्स or those structures which are directly involved in reproduction. डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे टेस्टिस एंड ओवरी, दे प्रोड्यूस द मेल एंड फीमेल गैमेट, सो दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ reproduction. So they are known as primary sexual characters. Then what is secondary sexual characters? Any physical characteristics developed at puberty which distinguishes between sexes but is not directly involved in reproduction are known as secondary sexual characteristics. That means ये फिजिकल कैरेक्टर है जो कि प्यूबर्टी के टाइम में डेवलप होता है, एंड दे आर मीन्ट फॉर, किस लिए है? टू आइडेंटिफाई द मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए है, लेकिन रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं है. ओके, सो इट ऑलवेज हेल्प्स हेल्प्स टू डिफ्रेंशिएट मेल एंड फीमेल. नाउ चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. हमने आपको बताया कि प्यूबर्टी में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, एंड उस चेंज में आपका डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी एक तरह का चेंज है. सो कॉमन चेंजेस जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में, हम कॉमन चेंजेस देखेंगे. थिक हेयर ग्रोथ ऑन चेस्ट, अंडर आर्मपीट एंड प्यूबिक एरिया. ओके, थिक हेयर का ग्रोथ होता है चेस्ट में मेल का, देन अंडर आर्मपीट, आर्मपीट के नीचे, एंड प्यूबिक एरिया मीन्स एक्सटर्नल जेनिटलिया के ऊपर हेयर ग्रोथ होता है. देन थीन हेयर ग्रोथ ऑन लेग्स एंड आर्म्स, लेग्स एंड आर्म्स में थीन हेयर ग्रोथ होता है. ठीक है, ये कॉमन फीचर है बच्चों, दैट इज़ फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. स्किन बिकम्स ऑयली ड्यू टू इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ऑयल ग्लैंड्स लीडिंग टू पिम्पल्स. आपने देखा होगा काफ़ी सारे बच्चों का इस एज में पिम्पल्स निकल आते हैं, लेकिन उसके लिए बच्चे वरीड हो जाते हैं, बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं. लेकिन उसके लिए कॉन्शियस होने की या वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे प्यूबर्टी में जो ऑयल ग्लैंड होते हैं, ऑयल ग्लैंड एक्टिव होने लगते हैं, उसका एक्टिवनेस बढ़ जाता है, जिसके वजह से पिम्पल्स होते हैं. देन कॉन्शियस एंड अवेयर अबाउट द चेंज इन द बॉडी, बॉडी में जो चेंजेस होता है, जैसे मेल एंड फीमेल में ये जो चेंजेस हमने बताया, उस चेंज की वजह से कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है. ओके, तो अभी हम देखेंगे चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल एंड फीमेल. मेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है. इससे पहले जो हमने बताया, दीज आर द कॉमन चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन मेल एंड फीमेल. अभी हम देखते हैं मेल एंड फीमेल में क्या चेंजेस होते हैं. मेल में डेवलपमेंट ऑफ मुस्टैचेस एंड बियर्ड, मूछ और दाढ़ी निकलना शुरू होता है. बॉडी बिकम्स मस्कुलर एंड शोल्डर ब्रोडन्स, शोल्डर ब्रॉड होता है और बॉडी मस्कुलर होता है, मसल्स का डेवलपमेंट होता है. एक्सक्यूज मी. देन एनलार्जमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन जैसे पेनिस का एनलार्जमेंट होता है एंड इरेक्शन होता है. ओके, देन
डेवलपमेंट ऑफ एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल यू नो बच्चों, दैट इज एनलार्ज्ड वोकल कोड. सो बॉयज़ में एनलार्ज्ड वोकल कोड दिखने लगता है, एंड जिसके वजह से वॉइस बिगिंस टू क्रैक एंड बिकम होर्स ड्यू टू थिकर वोकल कोड. वोकल कोड उनका थिक हो जाता है, इसीलिए वॉइस शुरू शुरू में क्रैक होता है, फिर उसके बाद होर्स वॉइस, मोटा गला होना शुरू हो जाता है. अभी हम देखते हैं फीमेल में क्या चेंजेस होता है. फीमेल में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट विथ डार्कनिंग ऑफ स्किन ऑफ निपल. ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है और जो ब्रेस्ट का निपल होता है वो डार्क होने लगता है. देन वेस्ट वाइडेंस. देखो बच्चों, मेल में शोल्डर वाइड होता है, बट फीमेल में वेस्ट, कमर वाइड होने लगता है. वाइडर हिप्स ड्यू टू ब्रॉडर पेल्विक एरिया. पेल्विक एरिया मतलब देखो बच्चों, ये है हमारे बॉडी कैविटी. तो मान लो दिस इज़ बॉडी कैविटी, तो यहाँ पर हमारे जो लोअर पोर्शन होता है बॉडी कैविटी का, उसको पेल्विक एरिया कहा जाता है. तो ये पेल्विक एरिया वाइड होने लगता है और हिप्स भी वाइड होने लगता है. एंड देन सबसे बड़ा जो ड्रास्टिक चेंज होता है, दैट इज मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स. मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है. ठीक है. नाउ अभी सवाल ये है कि व्हाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मैच्योरेशन एट दिस एज. इस एज में सेक्सुअल मैच्योरेशन क्यों आता है? The major priority before puberty is to achieve a proper body growth. Therefore, all the resources are directed at achieving growth. देखो बच्चों, प्यूबर्टी से पहले सबसे क्या ज़रूरत है? सबसे बड़ा ज़रूरत है कि बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ हो, और प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो रिसोर्स चाहिए हमारे बॉडी में, प्रॉपर ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, कोई भी ग्रोथ के लिए हमारा जो रिसोर्स चाहिए, दैट रिसोर्स शुड बी देयर एंड दैट शुड बी डायरेक्टेड इन ए प्रॉपर वे. इसका मतलब क्या है? हमारा न्यूट्रिशन भी सही रहना है, हमारा हार्मोनल कंडीशन सही रहना है, हमारा हर कोई चीज़ मतलब लाइफस्टाइल भी सही रहना है. ठीक है. So during the puberty, the rate of general growth begins to slow down, and reproductive tissue begins to mature under the influence of hormones. तो बच्चों, ये जो चाइल्डहुड स्टेज हमने आपको बताया था, उस स्टेज में हमारा बॉडी का ग्रोथ होता है, सिर्फ ग्रोथ होता है. ठीक है. लेकिन प्यूबर्टी में क्या होता है? ये जो जनरल ग्रोथ था, ये जनरल ग्रोथ बिगिंस टू स्लो डाउन, धीरे धीरे स्लो हो जाता है. और रिप्रोडक्टिव टिश्यू जो होते हैं, यू नो दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. तो ये जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू होते हैं वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं. और ये मैच्योर क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स, स्पेसिफिक हार्मोन्स सीक्रेट होना शुरू होते हैं. सो ये सारे जो चेंजेस होते हैं, जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होता है, ऑल दीज आर बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स which causes the maturation of the reproductive tissue. So reproduction क्या है? Already I have told you. So usually animals having two sexes, and both sexes, male and female, are needed to produce new generation, लाइक ह्यूमन, कैट, डॉग एट्सेट्रा. तो अभी यहाँ पर एक टर्म मैं आपको बताऊंगी बच्चों. कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें कि मेल फीमेल अलग होते हैं मैक्सिमम में, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल में होते हैं. सो दे आर कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट. ऐसे इंडिविजुअल जिसमें कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव structures are present in the same individual are called hermaphrodite और bisexual. So बच्चों, bisexual term जो है वो हम plant and animal दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन hermaphrodite term can be used only for animals. Remember this. So इसका कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर. snail है, slug, leech and earthworm. So they are all hermaphrodites. तो बच्चों, अभी हम सेक्सुअल मैच्योरिटी के बारे में डिस्कस किया, और जो चेंजेस होते हैं बिहेवियरल, इमोशनल, फिजिकल चेंजेस होते हैं. तो
ये चेंजेस आर द साइन ऑफ अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो अभी हम जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ने के लिए, बट बिफोर दैट यू शुड अंडरस्टैंड the reproductive system in male and female. In human being, the male and female reproductive systems are present in separate individual. The male reproductive system is present in male and female reproductive system is present in female. So today in this session we'll discuss only about male reproductive system. So look at the picture, children. So this diagram is also important from examination point of view. So यहाँ पर मैंने कलरफुल डायग्राम दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. So I'm going to discuss the male reproductive system. तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये है लेटरल व्यू. ये जो है लेटरल व्यू हमने दिखाया, और ये है फ्रंटल व्यू. ठीक है. तो यहाँ पर आपको एक ही साइड का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर दोनों साइड का स्ट्रक्चर दिखाया गया है. ठीक है. जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं सारा डायग्राम आपको दिखा के एक्सप्लेन करूँगी. सो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है, ए पेयर ऑफ टेस्टिस और टेस्टिकल्स. ओके. सबसे पहले क्या होता है, ए पेयर ऑफ टेस्टिस और टेस्टिकल्स व्हिच इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि टेस्टिस हार्मोन सीक्रेट करता है. सो दिस टेस्टिस आर मेड अप ऑफ न्यूमरस कॉइल्ड ट्यूब्स which produce sperms or male gametes and it also secretes male hormone. तो चलिए बच्चों मैं आपको बताती हूँ. ये देखो. सो दिस ब्राउन कलर जो स्ट्रक्चर है, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड टेस्टिकल और टेस्टिस. एंड टेस्टिस के अंदर क्या होता है बच्चों, देखो टेस्टिस, ये है एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर. यहाँ से आप देख रहे हो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. ओके. टेस्टिस के अंदर आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारे ऐसे येलो कलर का ट्यूब्स है. ठीक है, कॉइल ट्यूब्स है. सो दीज कॉइल ट्यूब्स आर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. जैसे किडनी में यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन्स होते हैं, उस तरह टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं. तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करते हैं बच्चों, these seminiferous tubule produces sperm. एक्चुअली आपका जो sperm या मेल गैमेट होते हैं, द मेल गैमेट और sperms आर प्रोड्यूस्ड इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. इसके अलावा टेस्टिस का दूसरा काम क्या है, एक तो है स्पर्म प्रोड्यूस करना, दूसरा काम है टू रिलीज सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरॉन. ओके. अच्छा, दूसरा पार्ट अभी हम देखेंगे स्क्रोटम. स्क्रोटम क्या है बच्चों, अभी इस डायग्राम में हम जाएंगे. सो यू कैन सी दैट द टेस्टिस इज लोकेटेड इन ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड द बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी यहीं पर ख़त्म हो जाती है, और बॉडी कैविटी के बाहर एक पाउच है, उस पाउच के अंदर टेस्टिस लोकेटेड है. हम ये स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, ये फ्रंटल व्यू. तो ये हमारा बॉडी का जो पार्ट है, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है बॉडी कैविटी, और यहाँ से क्या होता है, एक पाउच शुरू होता है. ठीक है. एंड दिस इज द पाउच, दे आर लोकेटेड लाइक दिस. ओके. सो the testes are located inside the pouch, and that pouch is called scrotum. That pouch is called scrotum. तो ये स्क्रोटम में क्यों है टेस्टिस, वाई इट इज नॉट लोकेटेड इनसाइड द बॉडी. बॉडी के अंदर क्यों नहीं है, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर टेस्टिस होता तो टेस्टिस वुड हैव नॉट प्रोड्यूस्ड द स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. बॉडी के अंदर हमारा टेम्परेचर कितना होता है बच्चों, 37 डिग्री सेल्सियस. ओके. तो ये जो स्क्रोटम होता है, when it is located outside the body, its temperature is 2 to 3 degree Celsius less than the body temperature. 2 to 3, यहाँ 1 लिखा है बच्चों, you just correct it. It is 2 to 3 डिग्री बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, यानी 34 डिग्री तक इसका टेम्परेचर हो सकता है. ठीक है. और जिसके वजह से ये सुइटेबल है फॉर द, एंड दिस टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर
or less than 37 degrees Celsius temperature is suitable for the development of the sperm. That's why the testes are located outside the body cavity in the scrotum. Okay. अच्छा, अभी देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, एपिडाइडमिस। यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ से टेस्टिस से निकला हुआ है एक कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ब्राउन कलर से दिखाया गया है। सो दैट इज कॉल्ड एपिडाइडमिस, जहाँ पर स्पर्म तो रिलीज होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से, लेकिन वो जाकर स्टोर होता है एपिडाइडमिस। ये जो कॉइल्ड पार्ट है, ये देख रहे हो कॉइल्ड पार्ट है, यहाँ स्टोर होता है और वहाँ मैच्योर भी होता है। ठीक है। एंड ये एपिडाइडमिस स्पर्म को प्रोपेल करता है, धकेलता है, आगे की तरफ धकेलने में हेल्प करता है। ठीक है। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। द नेक्स्ट पार्ट इज भास डिफरेंस विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्पर्म डक्ट, जिसको हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। सो दिस स्पर्म डक्ट आप देख सकते हो, ये है टेस्टिस, टेस्टिस के ये पास क्या है, एपिडाइडमिस। उसके बाद आप देख सकते हैं एक ट्यूब जहाँ ऊपर तक गया है। ठीक है। इट इज़ ए नैरो डक्ट which helps to transport sperm from the testis to urethra. टेस्टिस से यूरेथ्रा तक वो स्पर्म को ले आता है। सो ये मैं मिटा देती हूँ। ओके। तो यहाँ देखो, ये है स्पर्म डक्ट या भास डिफरेंस, जो कि स्पर्म को यहाँ तक ले आता है। ये है यूरेथ्रा। ठीक है। यहाँ से यूरेथ्रा शुरू होता है। सो यूरेथ्रा क्या है बच्चों, जानते हो? यूरेथ्रा ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन रिलीज होने के लिए जो एक नली होता है, ट्यूब होता है, डक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। तो यहाँ पर हमारा जो स्पर्म डक्ट है या फिर भास डिफरेंस है, वो भी यूरेथ्रा में आकर ओपन होता है। ठीक है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। तो मैं पहला डायग्राम में जा रही हूँ, फिर से आपको वहाँ पर समझाऊंगी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पर्पल कलर का है, दिस पर्पल कलर डक्ट इज द भास डिफरेंस। और ये कहाँ तक आया है, देखो ऐसे आया है। और यहाँ एक पिंक कलर का डक्ट है, वहाँ पर ओपन हुआ है। सो ये जो पिंक कलर का डक्ट एक ग्रीन कलर पाउच के साथ जुड़ा हुआ है। दिस ग्रीन कलर पाउच इज द यूरिनरी ब्लैडर। सो एक्चुअली ये जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा कहाँ से निकला हुआ है? यूरेथ्रा निकला हुआ है यूरिनरी ब्लैडर से, देख रहे हो। लेकिन आपका भास डिफरेंस भी आकर वहीं पर ओपन हुआ है। ठीक है। डायग्राम को आप अच्छे से ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा। तो ये है भास डिफरेंस, ऐसे गया। ठीक है। फिर ये जाकर कहाँ खुला? आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो पिंक डक्ट जो कि यूरिनरी ब्लैडर से निकला हुआ है। ठीक है। इसका काम क्या है? टू कैरी द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। तो इस पिक्चर में भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो बच्चों, ये रहा स्पर्म डक्ट, यहाँ से ऐसे आया और यूरेथ्रा। ठीक है। ये है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के अंदर वो स्पर्म को लेकर आता है। ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट विल बी डिस्कसिंग इसके बाद हम देखेंगे इजाकुलेटरी डक्ट। आपके बुक में नहीं है, बट स्टिल देन मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों, इजाकुलेटरी डक्ट क्या होता है। अब देखो यहाँ पर, ये मैं मिटा देती हूँ फिर से। ये देखो, यहाँ से आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ एक ग्लैंड है पर्पल कलर का। ठीक है। तो ये जो भास डिफरेंस किसके साथ आकर मिला हुआ है? सेमिनल वेसिकल, एक ग्लैंड के साथ मिलकर फिर यहाँ पर ओपन हुआ है। ठीक है। तो ये जो ओपन हुआ है उसको कहा जाता है इजाकुलेटरी डक्ट। सो स्पर्म डक्ट प्लस डक्ट ऑफ द सेमिनल वेसिकल टुगेदर कंस्टिट्यूट द इजाकुलेटरी डक्ट। फिर ये ओपन होता है कहाँ? यूरेथ्रा में। ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, पेनिस। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज पेनिस। पेनिस इज द सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, यू कैन सी। ओके। सो दिस सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेनिस। ये एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, हाईली मस्कुलर। इसका कैरेक्टर फीचर क्या है हम देखते हैं, चलिए। तो पेनिस कंटेन्स द यूरेथ्रा एंड इज ए पासेज
वे फॉर द इजैकुलेशन ऑफ सीमेन एंड एक्सक्रेशन ऑफ यूरिन। इसका काम क्या है बच्चों? इसका काम है, मैं इस दोनों पिक्चर में आपको दिखाऊंगी। सो यहाँ जो आप देख रहे हो ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, इट इज़ हाईली मस्कुलर, दिस इज कॉल्ड पेनिस। और आप देख सकते हो पेनिस के थ्रू यूरेथ्रा गया है, ठीक है। सो इट इज़ द पासेस, द यूरेथ्रा पासेस थ्रू द पेनिस, ठीक है। और पेनिस के थ्रू जो यूरेथ्रा गया है, यूरेथ्रा के थ्रू क्या जाता है? यूरिन। इसके थ्रू क्या जाता है? यूरिन एंड क्या है बच्चों? सीमेन। सीमेन क्या होता है बच्चों, हम आपको बताएंगे, आगे जाकर हम बताएंगे। तो इस डायग्राम में भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि दिस इज द यूरेथ्रा, ठीक है। सो यूरेथ्रा पासेस थ्रू द पेनिस और इसके थ्रू यूरिन एंड सीमेन रिलीज होता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, यूरेथ्रा। इन मेल यूरेथ्रा इज अ शेड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम। बच्चों ये जो यूरेथ्रा होता है ये फीमेल में भी होता है, हम आपको बार बार दिखा चुके हैं कि यूरेथ्रा क्या होता है। सो यूरेथ्रा, इसके थ्रू जो पासेज है दैट इज़ कॉल्ड यूरेथ्रा। एंड यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो पिंक कलर ट्यूब है दैट इज़ यूरेथ्रा। लेकिन बच्चों ये यूरेथ्रा फीमेल में भी होता है। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूरेथ्रा मेल एंड फीमेल? फीमेल में यूरेथ्रा के थ्रू सिर्फ यूरिन जाता है, लेकिन मेल में बोथ यूरिन एंड स्पर्म दोनों पास होता है। इतना याद रखो बच्चों, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन यूरेथ्रा ऑफ मेल एंड फीमेल। उसके बाद हम देखेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स। देखो बच्चों ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ कुछ ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सो देर आर 3 ग्लैंड्स which are associated with the male reproductive system. They are seminal vesicle, prostate gland and bulbourethral or Cowper's gland, ठीक है। तो seminal vesicle, इसका काम क्या है? It secretes alkaline viscous fluid that helps neutralize acid in the female reproductive tract and it nourishes and stimulates the स्पर्म्स। तो देखो बच्चों हम देखते हैं अभी कहाँ है ये ग्लैंड, ये देखो यहाँ देख रहे हो ना ये स्ट्रक्चर। सो दिस इज सेमिनल वेसिकल। इससे पहला वाला डायग्राम में भी मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज सेमिनल वेसिकल, बिकॉज ये लेटरल व्यू है तो एक सेमिनल वेसिकल दिखाया गया है। तो ये सेमिनल वेसिकल स्पर्म को न्यूट्रिएंट देता है, स्पर्म को अल्कलाइन मीडियम देता है और स्पर्म को प्रोपेल करने में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। और ये नरिशमेंट इसलिए देता है क्योंकि इसमें से जो फ्लूइड सीक्रेट होता है उस फ्लूइड में फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द ग्लैंड। कितने होते हैं सेमिनल वेसिकल? 2 सेमिनल वेसिकल होते हैं, ठीक है। इस पिक्चर से आपको पता चल जाएगा कि सेमिनल वेसिकल 2 होते हैं, ठीक है। अच्छा अभी उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट ग्लैंड क्या है? नेक्स्ट ग्लैंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड secretes a fluid that protect and stimulates the motility of the sperm cells in the semen। तो देखो बच्चों मैं यहाँ फिर आऊँगी, देखो ये देखो आपका दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, आप देख सकते हो यहाँ पर दिस इज ए सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड। याद रखो प्रोस्टेट ग्लैंड कितना होता है? ओनली 1। सेमिनल वेसिकल कितना होता है? 2, ठीक है। सो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है? यहाँ से जो फ्लूइड सीक्रेट होता है वो स्पर्म का मोटिलिटी, मूवमेंट ऑफ स्पर्म का मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद जाएंगे हम लास्ट ग्लैंड, क्या देखेंगे? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। इट सीक्रेट्स अल्कलाइन फ्लूइड which neutralizes the acidic environment of the urethra and mucus। देखो बच्चों यहाँ पर मैं फिर जाऊंगी इस डायग्राम में, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो जस्ट बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे आप देख रहे हो यहाँ 2 बहुत छोटे छोटे ग्लैंड है,
ठीक है, मैं ये लेवलिंग को हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आप इसको देख सको। ठीक है, सो बहुत छोटे छोटे दो ग्लैंड्स होते हैं जिसको कहा जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। इसका काम क्या है, ये बेसिकली म्यूकोस सिक्रेट करता है और ये पेनिस को लुब्रिकेट करता है। ठीक है, जब सेक्सुअल एक्ट के टाइम पेनिस मूव करता है तो पेनिस इज कवर्ड बाय वेरी थीन membrane, so that membrane may get destroyed and also the muscles may get damaged. So the lubricants are present, lubricants are secreted. The lubricants are what? Lubricants are mucus. So how many Cowper's gland? There are two Cowper's gland present at the anterior part of the penis and they help in lubrication of the penis. ठीक है, तो यहाँ आपका इसमें इस पिक्चर में नहीं है बच्चों कॉपर्स ग्लैंड, ओनली पोस्टेड ग्लैंड हैज सोन। सो दीज आर द एसोसिएटेड ग्लैंड्स एंड देयर रोल। ठीक है, तो अभी बच्चों सीमेन क्या है, हम आपको सीमेन सीमेन बार बार बोल रहे हैं कि यूरिन भी पास होता है, सीमेन भी पास होता है। लेट अस सी व्हाट इज सीमेन। सीमेन इज द मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड सेमिनल फ्लूइड। स्पर्म कहाँ से आया बच्चों? टेस्टिस से आया। अभी सेमिनल फ्लूइड क्या है? द सेमिनल फ्लूइड इज द फ्लूइड दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्ब यूरेथ्रा। ये तीनों ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है वो तीनों को मिलाकर एक फ्लूइड बनता है। दैट फ्लूइड इज कॉल्ड सेमिनल फ्लूइड। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, सो क्या है बच्चों? सीमेन क्या है? सीमेन इज सेमिनल फ्लूइड प्लस स्पर्म। सेमिनल फ्लूइड क्या है? द सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, okay, in which the sperms are freely moving. The what are sperms? Now let us see little bit let us discuss a little bit structure of the sperms. The sperms are tiny bodies. These are single cells. ये एक सेल है बच्चों, and it consists of head, middle piece and tail. आप देख सकते हो ये head है, then this is middle piece. Okay, this portion is middle piece and this is the tail. ठीक है, head, middle piece and tail. So let us see head में क्या है, tail में क्या है, middle piece में क्या है। head में आप देख सकते हो बच्चों एक बड़ा सा न्यूक्लियस है। there is a big nucleus which contains how many chromosome? इसमें क्रोमोजोम कितने होते हैं? 23। सो 23 में से ये कैसे होता है बच्चों 23 क्रोमोजोम? 22 प्लस एक्स या फिर 22 प्लस वाई। ठीक है, कुछ स्पर्म में ये होता है और कुछ स्पर्म में वाई क्रोमोजोम होता है। ठीक है, तो ये इसमें टोटल ऑल टुगेदर 23 क्रोमोजोम होते हैं हेड में। और हेड के आगे आप देख सकते हो एक छोटा सा प्रोसेस है, आप देख सकते हो ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया। सो यहाँ आप देख सकते हो बच्चों ये एक दिस प्रोसेस यू कैन सी दिस वन बच्चों। सो दैट इज कॉल्ड एक्रोजोम, जिसको कहा जाता है एक्रोजोम। ये एक्रोजोम क्या करता है? ये जब एग को पेनिट्रेट करता है ना उसमें हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे मिडिल पीस में। मिडिल पीस में आप रेड कलर का स्पॉट देख सकते हो। सो ये रेड कलर का स्पॉट्स है माइटोकॉन्ड्रिया। सो मिडिल पीस में काफ़ी सारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एटीपी जनरेट करता है एंड दैट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द स्पर्म। स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो स्पर्म को एनर्जी क्यों चाहिए? एक तो इसको मूव करके जाना है एग तक, उसके लिए एनर्जी चाहिए। दूसरा है कि उसको एग को पेनिट्रेट करना है। सो ये दोनों चीज़ के लिए उसको एनर्जी चाहिए एंड दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम दिस माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच आर प्रेजेंट इन द मिडिल पीस। ओके, देन कम टू द टेल। देयर इज ए लॉन्ग टेल। ठीक है, और ये टेल का काम है टू मूव और स्विम इन द सीमेन। सीमेन में ये स्विम करने में स्पर्म को हेल्प करता है। ठीक है, सो दिस इज द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म।
तो बच्चों यहाँ पर और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो मैंने हेड के आगे एक स्ट्रक्चर बताया दैट इज़ कॉल्ड एक्रोजोम, यहाँ नीचे लिखा हुआ है बच्चों. सो दिस इज, यू कैन सी हियर, दैट इज एक्रोजोम. ओके, ये रहा एक्रोजोम. एंड इस एक्रोजोम के अंदर एक तरह का एंजाइम होता है जो कि स्पर्म को एग को पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प करता है. ठीक है, तो अभी एक बार एट ए ग्लांस देख लेते हैं कि क्या क्या पार्ट्स है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और उनका फंक्शन क्या है. टेस्टीज कितने होते हैं बच्चों? दो टेस्टीज. दो टेस्टीज प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन. एपिडाइडेमिस, इट इज़ ए कॉइल्ड ट्यूब. एक ही, दोनों तरफ दो एपिडाइडेमिस होते हैं एंड दे हेल्प्स इन मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म. देन एपिडाइडमिस भी दो होता है. स्पर्म डक्ट दो होते हैं. दे कैरी द स्पर्म फ्रॉम एपिडाइडमिस टू द यूरेथ्रा. सेमिनल वेसिकल, कॉपर्स ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ये तीनों एक्सेसरी ग्लैंड है. सेमिनल वेसिकल कितने होते हैं? दो. कॉपर्स ग्लैंड दो, बट प्रोस्टेट ग्लैंड एक. दे प्रोड्यूस सेमिनल फ्लूइड which feeds the sperm and allow them to swim. Sperm and seminal fluids are collectively called semen. Then urethra allow the passage of either urine or sperm. Then penis places sperm inside the body of the female. penis के movement द्वारा जो sperm होता है वो फीमेल बॉडी में जाता है. Then scrotum, it is a sac like structure. It keeps the testes at lower temperature. It is about 35 degree or 34 degree Celsius, and this is optimum temperature for meiosis to occur. That means sperm production के लिए ये helpful होता है. So this is all about your that is male reproductive system, children. I think it is very much clear to you. You please practice the diagram also, and also go through the functions of different parts of the male reproductive system, and get ready for our next session. I am coming with female reproductive system and fertilization. So till then, thank you very much. Keep watching.